Hello everyone, welcome in my online classes by Lionheart Keen Learner. Today we will start NCERT Science class 8th, chapter number 17. Chapter name is Stars and the Solar System. So before starting, please like and subscribe my videos. So let's start. The objects which exist in sky are called celestial objects. The stars, including the sun, the planets, including the earth, satellites like the moon, asteroids, comets, and meteoroids are all celestial objects. Celestial objects are known as heavenly objects or heavenly bodies. In this chapter, we will learn about the various celestial objects which exist in the vast surrounding space called universe. First part of this chapter is Paheli and Bujo visited their grandfather's village during the summer break. After dinner, they went to the roof of the house. It was a clear, cloudless night. They were surprised to see a large number of bright stars in the sky. They had never seen such a beautiful scene in their city. Means पहेली और बूजो अपने ग्रैंडफादर के घर घूमने गए छुट्टियों में और डिनर के बाद जब वो रूफ पे गए तो उन्होंने वहाँ से बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दिया, जैसे कि नाइट के अंदर क्लाउडलेस नाइट के अंदर बिल्कुल साफ साफ उनको हजारों करोड़ों की गिनती में स्टार्स नजर आ रहे थे इन द स्काई। और ये अद्भुत नज़ारा उनके घर से, उनकी सिटी से नहीं दिखाई देता कभी भी। सो दिस टाइप ऑफ द व्यू फ्रॉम द रूफ ऑफ द बूजो एंड पहेलीज ग्रैंडफादर रूफ। Paheli wondered why the village sky was so different from the night sky in the big cities. अलग क्यों होता है विलेज स्काई एंड बिग सिटी स्काई? Her grandfather explained that due to bright light, smoke and dust, the sky in the big city is rarely clear. Means due to the बहुत ज़्यादा चमक दमक होती है उन शहरों में, स्मोक होता है, डस्ट होती है, जिसके कारण क्या है, हमें साफ साफ अपना आकाश स्काई दिखाई नहीं देता। सो ही आल्सो आइडेंटिफाइड सम ऑब्जेक्ट्स सीन इन द नाइट स्काई एंड टोल्ड स्टोरी। ना उनके ग्रैंडफादर उनको कुछ बातें ऐसी बताते हैं ज्ञानवर्धक जो बहुत काम आने वाली हैं अबाउट द स्काई और यूनिवर्स। नाइट स्काई वाचिंग can be fascinating experience at the place where there are no bright light and the atmosphere is clear. Means वहाँ पर नाइट स्काई को देखना बहुत ही ज़्यादा रोमांचक रहता है जहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की ब्राइट लाइट ना हो और एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लियर रहता है। लुक एट द स्काई ऑन ए डार्क clear night, you see the entire sky dotted with countless stars, some bright and some not so bright. पूरे आकाश में बहुत से तारे हमें दिखाई देते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, और इनमें से कुछ ब्राइट, फुल ब्राइट होते हैं और कुछ ब्राइट ज़्यादा नहीं करते। ऑब्जर्व दैम केयरफुली, इनको अच्छे से देखें। तो नाउ डू ऑल ऑफ दैम अपीयर्स टू ट्विंकलिंग, क्या सभी इसमें से ट्विंकलिंग करते हैं? मीन्स टिमटिमाते हैं। डू यू फाइंड any star like object which does not twinkling? The object which do not twinkling are planets. Means इनमें से जो twinkling नहीं करते वो सभी planet होते हैं। The moon is the brightest object in the night sky. The stars, the planets, the moon and many other objects in the sky are called celestial objects. Means बहुत ज़्यादा heavenly bodies जो स्काई के अंदर हमें दिखाई देती हैं, स्टार्स टाइप, प्लैनेट, मून, बिग बिग ऑब्जेक्ट्स जो हमें दिखाई देते हैं, कोई जो चमकता है कोई नहीं चमकता, दैट वन इज आर हेवनली बॉडीज और वी कैन से सेरेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। द स्टडी ऑफ सेरेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड द एसोसिएटेड फिनोमिना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। इनके बारे में पढ़ना और इनके बारे में स्टडी करना, दैट वन इज द एस्ट्रोनॉमी, इज द साइट ऑफ दैट स्टडी। In ancient India, our initiator
performed methodical observations of sky, their knowledge of astronomy was highly advanced for their time. Passage of sun, stars, moons, and planets in the sky helped them to devise calendars and elements. These were often used by people in their day to day conduct and a better understanding of climate and rainfall pattern for timely showing and choice of crops. Fixing the dates of seasons and the festivals means बहुत से जो हमारे पुराने विज्ञान खगोल शास्त्री जितने भी थे सभी अंदाजे से या कह सकते हैं वो अपनी एक गणना के अनुसार कैलेंडर्स के द्वारा पता लगाते थे अब हमने कौन सी फसल उगानी है, कौन सी नहीं उगानी है, कौन सा सीजन है, किस प्रकार से कौन सा फेस्टिवल है. लेट अस आल्सो मेक सम ऑब्जर्वेशंस ऑफ celestial objects and learn about them. First, 17.1 The moon. मून हिंदी में हम इसे चंद्रमा भी बोलते हैं जो हमारे बहुत काम आता है. सो एक्टिविटी 17.1 में हम करेंगे ऑब्जर्व द मून कंटिन्यूसली फॉर सेवरल नाइट्स preferably from one full moon to the next. Make a sketch of the moon every night in your notebook and note the day from the day of the full moon. Also note every day the part of the sky in which the moon is seen. Means हम क्या करेंगे, मून को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे पूरे मंथ और इसमें इसके हम चित्र बनाएंगे. तो इस प्रकार से हम इसका रिकॉर्ड रखेंगे किस प्रकार से इसकी फेजेस चेंज होती हैं. फेजेस मीन्स इसकी अवस्थाएं चेंज होती हैं तो उनके बारे में हम अच्छी तरह से रिकॉर्ड रखेंगे. इज देयर ए चेंज इन द शेप ऑफ द मून एवरी डे. क्या कोई चेंज होता है इसके शेप में एवरी डे मून की. आर देयर डे व्हेन द शेप ऑफ द मून अपीयर्स टू बी परफेक्टली राउंड. आर देयर डेज व्हेन द मून कैन नॉट सीन एट ऑल इवन इफ द स्काई इज क्लियर. मीन्स आसमान साफ होने के बावजूद भी हमें बहुत से दिन ये दिखाई नहीं देता और बहुत से दिन ये हमें पूरा दिखाई देता है और कुछ दिन ये हमें आधा दिखाई देता है. द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज द फुल मून डे. मीन्स जिस दिन पूरा चंद्रमा हमें दिखाई दे दैट वन इज द फुल मून डे. देयर आफ्टर एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर्स टू बिकम थिनर एंड थिनर. और उसके बाद धीरे धीरे इसका जो साइज है वो कम होता चला जाता है और कम होता चला जाता है. ऑन द 50th डे द मून इज नॉट विजिबल. और पूरे 15वें दिन मून चंद्रमा हमें दिखाई देना बंद हो जाता है, उस दिन दिखाई नहीं देता. दिस डे इज नोन एज न्यू मून डे. ये जो फेज है इसकी ये न्यू मून डे मीन्स अवस्था न्यू मून डे बोला जाता है इसको. द नेक्स्ट डे ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ मून अपीयर्स इन द स्काई. उसके अगले दिन बहुत छोटा सा मून हमें दिखाई देता है, थोड़ा सा पोर्शन दिखाई देता है इसका. दिस इज नोन एज द क्रीसेंट मून. इसको हम बोलते हैं क्रीसेंट मून. देन अगेन द मून ग्रोज लार्जर एवरी डे. अब हर दिन वो क्या बढ़ता चला जाता है. ऑन द 15th डे वंस अगेन वी गेट ए फुल व्यू ऑफ द मून. और न्यू मून डे के बाद पूरे 15वें दिन फिर से हमें फुल मून डे आ जाता है. मीन्स फिर से हमें फुल मून दिखाई देता है. द वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग ए मंथ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ मून. फेजेस ऑफ द मून मीन्स जो ये कम ज़्यादा वेरियस शेप्स इसकी दिखाई देती हैं हमें हर दिन अलग अलग. दीज आर द फेजेस ऑफ द मून. Phases of the moon plays an important role in our social life. Almost all festivals in India are celebrated according to the phases of the moon. Means ये हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं फेजेस ऑफ मून. और इन फेजेस ऑफ मून के अकॉर्डिंग ही हम लोग बहुत से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में. फॉर एग्जाम्पल दीपावली इज सेलिब्रेटेड ऑन द न्यू मून डे. Buddha Purnima and Guru Nanak's birthday are
celebrated on full moon day. Mahashivratri is celebrated on 30th night of waning moon. Eid ul Fitr is observed on the day following the sighting of crescent moon. The time period between one full moon to the next full moon is slightly longer than 29 days. In many calendars, this period is called a month. Means the time period between the full moon टू फुल मून मीन्स एक फुल मून से दूसरे फुल मून के बीच का जो टाइम होता है वो लगभग 29 दिन का है और जिसे हम कैलेंडर के हिसाब से एक मंथ बोलते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई फेजेस ऑफ द मून अकर्स. क्यों चेंज होती हैं ये फेजेस ऑफ द मून्स. यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 16 दैट द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओवन लाइट. आपको अच्छी तरह से पता है क्योंकि चैप्टर 16 में पढ़ चुके हैं कि मून अपनी लाइट नहीं बनाता. वी सी द मून बिकॉज द सन लाइट फॉलिंग ऑन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स अस. मीन्स ये हमें दिखाई देता है. कब दिखाई देता है? जब सनलाइट इस पे पड़ती है. मीन्स दिस इज द सन. सनलाइट मून पर जाके टकराती हैं और वो वापस घूम के हमारी अर्थ की तरफ आती हैं. दैट टाइम वी कैन वॉच दैट टाइम वी कैन सी द मून ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट फ्रॉम द मून. सो द रिफ्लेक्शन towards us is the cause to see moon in the sky. So अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 17.2. टेक a big ball or a picture, paint half of it white and half black. Go out into the playground with two of your friends. Draw a circle of radius of about 2 meters on the ground. Divide the circle into 8 equal parts as shown in figure 17.4. Stand at the center of the circle. Ask a friend to hold the ball at different points of the circle. Ask her to keep the white portion of the ball always towards the sun. If you are performing this activity in the morning, then the white portion of the ball should be kept towards the east. If the activity is being मीन्स इस प्रकार से 17.4 में जिस प्रकार से दिखाया गया या फिर इस प्रकार से 17.4 के अंदर ये डायग्राम चित्र आपको जो दिखाया गया है इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस बॉल का जो वाइट पार्ट है वो हमेशा सन की तरफ मीन्स सेंटर की तरफ रखना है. तो परफॉर्म्ड इन the afternoon, then the white portion of the ball should be kept towards the west. In each cases, the lining dividing the white and black portion is kept vertical. Standing at the center of the circle, observe the visible white portion of the ball while your friend stands at the points on the circle marked earlier. Draw the shapes of the white portion as you see it. Compare your drawing with the different phases of the moon as shown in figure 17.5. इस प्रकार से दिस इज द 17.5 phases of moon. मीन्स मून्स की जो स्थिति है, स्टेज है, वो हमारी अर्थ के अकॉर्डिंग और सन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे चेंज होती है वैसे वैसे हमें ये दिखाई देता है एट नाइट स्काई को. आप देख सकते हैं बहुत से अलग अलग प्रकार की, जैसे ये है, ये वाली एक अलग से है, ये अलग से है, दिस वन. तो ये सारे के सारे जितनी फेजेस हैं ये ड्यू टू द रिफ्लेक्शन एट डिफरेंट स्टेज. नाउ रिमेंबर दैट द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ अलोंग विद द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन. मीन्स आपको अच्छी तरह से बता दूं कि हमारी पृथ्वी सन के चारों तरफ घूम रही है और मून हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है. तो इस प्रकार से आवर अर्थ एंड मून रिवॉल्व अराउंड द सन बाय डिफरेंट कंडीशंस. सो कैन यू नाउ गेस द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सन, मून एंड द अर्थ ऑन द डे ऑफ द फुल मून एंड ए
and on the day of the new moon, sketch these positions in your notebook. In which part of the sky would you look for the full moon? The size of the illuminated part of the moon visible from the earth increases each day after the new moon day. After the full moon day, the sunlight part of the moon visible from the earth decreases in size every day. I have heard that we never see the back side of the moon from the earth. Is it true? Yes. Activity 17.3. Draw a circle of about 1 diameter on the ground. Ask one of your friend to stand at the center of this circle. You revolve around your that friend in such a manner that your face always remains towards him. Can your friend see your face back? How many rotations did you complete in one revolution? The moon revolves around the earth in a similar manner. Means किस प्रकार से the moon completes one rotation on its axis as it completes the one revolution around the earth. The moon surface. अब हम बात करेंगे moon surface के बारे में. So, the moon surface is a fascinating object for poets and storytellers. But when astronauts landed on the moon, they found that the moon surface is dusty and barren. There are many craters of the different sizes. Means ये पोएट्स के लिए, स्टोरी टेलर्स के लिए बहुत फैसिनेटिंग्स है ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो अपनी स्टोरीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वे से इसको एक्सप्लेन करते हैं. बट जब एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पहुँचे और मून पे उतरे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट है और कंकर पत्थर और हर तरह की मिट्टी वहाँ मौजूद है. तो मैनी क्रेटर्स हैं वहाँ डिफरेंट साइजेस के. क्रेटर्स मीन्स गड्ढे हैं बड़े बड़े. दैट वन. इट आल्सो हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेप एंड हाई माउंटेन्स. मीन्स बहुत बड़े बड़े उसमें स्टेप्स हैं एंड लार्ज माउंटेन्स, बड़े बड़े पहाड़ भी हैं. सम ऑफ दीज आर हाई एज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ. कुछ ऐसे भी हैं जो अपने अर्थ पे जो हाईएस्ट माउंटेन है उसके बराबर के भी हैं, गड्ढे और माउंटेन्स. द मून्स हैज़ नो एटमोसफेयर. मून के चारों तरफ किसी प्रकार का कोई एटमोसफेयर नहीं है. मीन्स वातावरण किसी प्रकार से वहाँ पर वायु नहीं है. इट हैज़ नो वाटर. वहाँ पानी भी नहीं है. कैन एनी लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून. क्या इस परिस्थिति में किसी प्रकार की लाइफ वहाँ पर हो सकती है? कैन वी हियर एनी साउंड ऑन द मून. क्या हम वहाँ कुछ सुन सकते हैं? तो बिना मीडियम के साउंड को सुना नहीं जा सकता. जैसा कि चैप्टर नंबर 13 में आपको बताया गया है कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल्स इन वैक्यूम. मीन्स विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रेवल. बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं करेगी. डिड यू नो ऑन जुलाई 21, 1969 इंडियन टाइम the American astronaut Neil Armstrong landed on the moon for the first time. He was followed by Edwin Aldrin. Means सबसे पहला जो मनुष्य चंद्रमा पे गया था वो 21 जुलाई 1969 में और इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, और उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसने पहला स्टेप अपना मून पे रखा था. नाउ 17.2 द स्टार्स. तारे. व्हाट अदर ऑब्जेक्ट्स डू यू सी इन द नाइट स्काई? देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई. ऑब्जर्व केयरफुली ऑन द डार्क नाइट एंड फ्रॉम ए प्लेस अवे फ्रॉम ए बिग सिटी. आर all the stars equally? Means
अगर आप बिग सिटीज से दूर जाके देखें तो नाइट स्काई, जब क्लियर नाइट स्काई हो, उसमें आपको बहुत सारे बड़े बड़े छोटे छोटे ब्राइट करती हुई बॉडीज आपको दिखाई देंगी। दीज आर कॉल्ड स्टार्स। आर दे ऑफ द सेम कलर्स? क्या ये सभी एक जैसे कलर्स के होते हैं? इनफैक्ट स्टार्स एमिट लाइट ऑफ देयर ओवन। स्टार्स जितने भी हैं वो सभी अपनी लाइट छोड़ते हैं। दैट इज वाई दे आर लूमिनियस ऑब्जेक्ट। द सन इज आल्सो ए स्टार। सन एक जो सबसे अच्छा उदाहरण है स्टार्स का, वो हमारे सबसे नजदीक है। दैट वन इज द सन। सन इज ए स्टार। वाई डज इट अपीयर्स सो लार्ज कंपेयर टू अदर स्टार्स? क्यों ये हमें इतना बड़ा दिखाई देता है दूसरे स्टार्स के मुकाबले में? विच अपीयर्स बिगर? ए फुटबॉल प्लेस नियर यू और ए फुटबॉल प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। द स्टार्स आर मिलियंस ऑफ टाइम फार्दर अवे देन द सन। मीन्स सन से ये कम से कम मिलियंस किलोमीटर दूर हैं, मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर हैं सन के मुकाबले हमसे। तो करके ये क्या है, हमें छोटे दिखाई देते हैं और सन हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है क्योंकि हमारे नज़दीक है। जैसा कि आप एक फुटबॉल अपने पास रखो, फिर उसको देखो, और एक उसको 100 मीटर दूर ले जाके रख दो, वहां से उसको देखो, तो आपको प्रतीत होगा कि जो पास रखी बॉल है वो बड़ी है और जो दूर रखी बॉल है वो छोटी दिखाई देगी। द सन इज नियरली 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमसे सन, 150 मिलियंस किलोमीटर के अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर, या हम कह सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर दूर सन हमारे से एग्जिस्ट करता है। द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज प्रोक्सिमा सेंचुरी। जो हमारे नज़दीक दूसरा स्टार है, दैट वन इज द प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो कि लगभग हमसे 40 लाख करोड़ किलोमीटर दूर है फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से। कैन यू रीड दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर्स कन्वीनियंटली? सम स्टार्स आर इवन फार्दर अवे, और कुछ स्टार्स इससे भी बहुत ज़्यादा दूर हमसे स्थित हैं। सच लार्जर डिस्टेंस आर एक्सप्रेस्ड इन अनदर यूनिट कॉल्ड और नोन एज लाइट ईयर। लाइट ईयर, लाइट ईयर है क्या आखिरकार? लाइट ईयर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि लाइट के द्वारा चली गई दूरी, एक साल में चली गई दूरी को हम 1 लाइट ईयर बोलते हैं। अनदर वे में हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। रिमेंबर दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। Thus, the distance of the sun from the earth may be said to be about 8 light minutes. The distance of Alpha Centauri is about 4.3 light year. Means एक साल में लाइट के द्वारा चली गई दूरी को हम लाइट ईयर बोलते हैं। और आपको मैं बता दूं कि एक सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर चली जाती है। तो एक साल में कितनी होगी तो देख लेना, आप हिसाब लगा लेना। हम लोग सन से 8 लाइट मिनट, मीन्स सन की जो लाइट है वहां से जब चलती है तो वो हमारे पास 8 मिनट बाद हमारे पास अर्थ पे पहुंचती है। इसी प्रकार से जो अल्फा सेंचुरी है वो हमसे 4.3 लाइट ईयर दूर है। मीन्स आज अगर हम यहां से लाइट की स्पीड से चलें अर्थ से, तो हम 4 साल और 3 महीने, लगभग 3-4 महीनों में हम वहां पर पहुंचेंगे। सो इफ लाइट फ्रॉम स्टार्स टेक्स ईयर्स टू रीच अस, आई वंडर इफ वी आर लुकिंग इनटू द पास्ट व्हेन वी लुक एट स्टार्स। मीन्स जब हमने पीछे पहले देखा था तो इसका मतलब वो लाइट कब की वहां से चली होगी और हमारे पास कब पहुंची होगी। आई वॉन्ट टू नो वाई वी डू नॉट सी द स्टार्स ड्यूरिंग द डे। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि हम दिन में तारे क्यों नहीं देख सकते। वाई आर दे विजिबल ओनली एट नाइट? क्यों ये रात को ही दिखाई देते हैं? तो इनका बहुत बड़ा रीजन है एक। इनफैक्ट द स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम आल्सो, हाउएवर दे आर नॉट विजिबल देन बिकॉज ऑफ द ब्राइट सनलाइट। मीन्स सन ग्लेयर्स की वजह से, सन की चमक की वजह से
हमें दिन में ये तारे स्टार्स दिखाई नहीं देते, बट लेकिन ये मौजूद होते हैं आसमान में। ऑब्जर्व सम prominent stars or a group of stars in the sky for about 2 hours or more। मीन्स हमने बहुत से ऐसे देखे हैं प्रोमिनेंट स्टार्स जो अपनी एक पोजीशन के तहत अपने एक ग्रुप के अंदर रहते हैं और उनकी एक शेप भी निर्धारित होती है। व्हाट डू यू फाइंड, क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस चीज़ में? डू यू फाइंड एनी चेंज इन द पोजिशंस ऑफ द स्टार्स इन द स्काई? क्या आप इनकी पोजीशन में कोई चेंज महसूस करते हैं? यू विल फाइंड दैट द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। आप अपीयर मीन्स आपको लगता है जैसे कि सभी स्टार्स क्या है, मूव करते हैं ईस्ट टू वेस्ट। ए स्टार विच राइज इन द ईस्ट इन द इवनिंग सेट्स इन द वेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग। सो वाई डू स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? लेट अस फाइंड आउट। इसको हम देखते हैं किस प्रकार से ये मूव करते हैं। एक्चुअल में स्टार्स मूव नहीं करते, हम लोग मूव करते हैं। जैसे ट्रेन में हम बैठे होते हैं, बाहर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे कि वो हमारी उल्टी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उसकी उल्टी डायरेक्शन में दौड़ के हमसे पीछे भाग रहे हैं, दूर जा रहे हैं हमसे बैक साइड में। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी ट्रेन चल रही होती है, हम लोग मूव कर रहे होते हैं, वो रिमेन स्टेशनरी मीन्स खड़े रहते हैं। तो बेस्ट एग्जाम्पल है ये इस चीज का। सो स्टैंड इन द सेंटर ऑफ ए बिग रूम एंड स्टार्ट रोटेटिंग इन विच डायरेक्शन विल द ऑब्जेक्ट इन द रूम अपीयर्स टू मूव। डू यू सी दैम मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू योर मोशन? क्या आप देख सकेंगे कि वो भी आपकी उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं? एक्चुअल में वो नहीं चलते, हम लोग ही घूम रहे होते हैं। पहली रिकॉल्स दैट व्हेन सी इज इन ए मूविंग ट्रेन द नियर ट्रीज एंड द बिल्डिंग्स अपीयर्स टू मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ट्रेन्स के बारे में मैं बता चुका हूं आपको। इफ द स्टार्स अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कुड इट मीन्स दैट द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? मीन्स हमारी अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। इसके रोटेशन के कारण हमें वो उल्टी दिशा में चलते हुए दिखाई देते हैं। एक्चुअल में वो स्टेशनरी है, हम लोग चल रहे हैं, हमारी पृथ्वी घूम रही है। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड द सेट इन द वेस्ट एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। अपनी ही ध्रुव पर ये घूमती रहती है वेस्ट टू ईस्ट, तभी हमें दिखाई देता है सन ईस्ट टू वेस्ट। सो my grandfather told me that there is one star in the sky which does not move at all. How is it possible? Means sky, आसमान में एक ऐसा तारा है जो कभी भी नहीं घूमता या मूव करता, ना मूव होता हुआ में अपीयर होता है। सो उसके बारे में हम बात करेंगे। एक्टिविटी 17.5, टेक एन अम्ब्रेला एंड ओपन इट, मेक 10 to 15 stars out of white paper. Paste one star at the position of the center rod of the umbrella and others at the different places on the cloth near the end of the each spoke. इस प्रकार से हम क्या है उनको व्यवस्थित कर देते हैं, बट एक स्टार को हम इसकी सेंटर पोजीशन पे रखेंगे। अब नाउ रोटेट द अम्ब्रेला बाय होल्डिंग इट सेंट्रल रोड इन योर हैंड। जैसे हम इसको रोटेट करते हैं तो हमें सेंट्रल रोड के अकॉर्डिंग सभी घूमते हुए नजर आएंगे, चलते हुए नजर आएंगे। बट हमारे जो सेंट्रल रोड पे जो रहता है, जो लोकेट किया गया था, इफ देयर वर ए स्टार लोकेटेड वेयर द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ मीट्स इन द स्काई, कुड दिस स्टार आल्सो बी स्टेशनरी। और ये जिस प्रकार से अम्ब्रेला में वो एक स्टार स्टेशनरी रहता है, इसी प्रकार से अर्थ के भी वो पोल्स के ऊपर होता है, जिसके अबाउट ये हमारी जो अर्थ है रोटेट करती है, तो वो हमें एज इट इज दिखाई देता है, जिसे हम बोलते हैं पोल स्टार। देयर इज एक्चुअली ए स्टार, द पोल स्टार, विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस। इट डज नॉट अपीयर्स टू मूव, ये हमें चलता हुआ दिखाई नहीं देता। नहीं, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं,
हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है इस प्रकार से, लेकिन हमारी जो अर्थ है वो इस प्रकार से रोटेट करेगी, लेकिन जो एक स्टार है जो कि इसके एक्सिस पे है, एक्सिस, दिस इज द एक्सिस, जिसके अराउंड हमारी अर्थ रोटेट करती है, वो स्टार हमें रिमेन स्टेशनरी यहीं का यहीं दिखाई देता है हमेशा। सो ये नहीं चलता। नेक्स्ट है 17.3 कॉन्स्टिलेशंस। हिंदी में बोलते हैं इसको हम तारामंडल। Look at the sky for some time. Can you see some stars forming groups with shapes like those in figure 17.11? मीन्स कुछ ऐसी शेप्स जो रिकॉग्नाइजेबल शेप्स हैं, जो मीन्स सभी ने एक्सेप्ट की हैं, ऐसी शेप्स हैं। दीज शेप्स आर कॉल्ड द फिक्स्ड शेप्स, जिन्हें बोल सकते हैं हम लोग ऑथराइज्ड शेप, जिन्हें बोल सकते हैं हम। Now, the stars forming a group that has a recognizable shape is called a constellation. Means the group of stars which have recognizable or fixed shape, that one is called constellations. Constellations were derived by ancient peoples to be able to recognize stars in the sky. The shapes of the constellation resemble objects familiar to those peoples. Means वो shapes कुछ मिलती ही जुलती shapes हैं objects के साथ. You can easily identify some constellation in the sky. For this, you should know what a particular constellation look like and where to look for it in the night sky. One of the most famous constellation which you can see during summertime in the sky early part of the night is Ursa Major. मीन्स जिसे हम सप्तऋषि भी बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं, ग्रेट बियर, ओरियन, कैशोपिया और लियो मेजर। तो इस प्रकार से कुछ शेप्स भी उनकी दी गई हैं, आप देख सकते हैं डिफरेंट शेप्स के साथ। तो इस प्रकार से जो शेप्स फिक्स स्टार्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग बनती हैं, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। और ये डिफरेंट टाइप्स के कॉन्स्टिलेशन आपके सामने दिखाए गए हैं, जिनमें से एक अर्सा मेजर भी है। इट इज ऑल्सो नोन एज बिग डिपर, द ग्रेट बियर और द सप्तऋषि। हिंदी में इसे हम सप्तऋषि के नाम से बुलाते हैं। अभी आपको दिखाया था ग्रेट बियर। देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार्स इन द कॉन्स्टिलेशन। इन दिस कॉन्स्टिलेशन it appears like a big ladle or a question mark. There are 3 stars in the handle of the ladle and the 4th in its bowl. Means आपको एक कड़छी के रूप में दिखाई देता है और इसके स्टार्स आप देख सकते हैं इस प्रकार से। इन ऑल एंशिएंट कल्चरल्स, very interesting mythological stories have been associated with the various constellations. Means अलग अलग constellations के लिए अलग अलग प्रकार की स्टोरी फेमस हैं हमारे समाज के अंदर। Now, Ursa Major, सप्तऋषि has been associated with the 7 well-known ancient Indian sagas और ऋषिज। ऋषिज मीन्स बहुत ज़्यादा मतलब फेमस ऋषि थे में इंडिया के। एज शोन इन फिगर बिलो, अकॉर्डिंग टू एनिशियंट मैथोलॉजी, द 7 sagas who from the सप्तऋषि preserve the eternal knowledge of Vedas and explain it to people in every new age. आप देख सकते हैं बहुत से ऋषि मुनियों के नेम इन स्टार्स पे अंकित किए गए हैं, बताए गए हैं, और इस प्रकार से इनको सप्तऋषि, हमारे फेमस ऋषियों में से 7 ऋषि जो हमारे वेद और महापुराणों को एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। सो नेक्स्ट एक्टिविटी 17.6, ऑब्जर्व दिस कॉन्स्टलेशन फॉर a few hours. Do you find any change in its shape? Do you find any change in its position? You will observe that the shape of the constellation remain the same. आप महसूस करेंगे कि इस कॉन्स्टिलेशन की किसी भी शेप
कैसे भी शेप चेंज नहीं होती, इसके जो फिक्स पोजीशन के अकॉर्डिंग स्टार्स हैं वो एज इट इज बने रहते हैं। यू विल आल्सो फाइंड दैट द कॉन्स्टलेशन अपीयर टू मूव इन द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यस, they also move east to west. I have heard that we can locate the pole star with the help of Ursa Major. Ursa Major के अकॉर्डिंग हम अपने पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको बता दिया जाएगा इसमें एक्टिविटी 17.7 में किस प्रकार से। द एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म्ड ऑन ए क्लियर मूनलेस नाइट ड्यूरिंग समर एट अबाउट 9 PM. Look towards the northern part of the sky and identify Ursa Major. You may get help from elders in your family. Look at the two stars at the end of Ursa Major. Imagine a straight line passing through these stars as shown in figure. तो आप फिगर में देख सकते हैं 17.3 लोकेटिंग द पोल स्टार। पोल स्टार को लोकेट करते हुए जो अर्सा मेजर के फर्स्ट 2 स्टार्स हैं, इनकी जो बिल्कुल सीधी रेखा अगर इससे खींची जाए, स्ट्रेट लाइन इससे बनाई जाए, तो वो पोल स्टार को जाके मिलती है। और इसको हम इस प्रकार से ही पढ़ सकते हैं जैसा दिखाया गया है एक्टिविटी 17.8 में। ड्यूरिंग ए समर नाइट ऑब्जर्व अर्सा मेजर 3-4 टाइम्स एट एन इंटरवल ऑफ 2 to 3 hours. Also located the pole star ईच टाइम। मीन्स इस प्रकार से भी इसको लोकेट किया जाता है कि पोल स्टार के अराउंड, इर्द गिर्द सप्तऋषि, मीन्स हमारा जो अर्सा मेजर है वो रोटेट करता है इस प्रकार से। और इसके जो फर्स्ट 2 स्टार्स हैं, इनसे अगर स्ट्रेट लाइन खींची जाए तो वो कहाँ आती है, हमारे पोल स्टार पर। सो इस प्रकार से हम इसको लोकेट कर सकते हैं, अर्सा मेजर मूव्स अराउंड द पोल स्टार को। Note that the pole star is not visible from the southern hemisphere. दक्षिणी शोर से इसको नहीं देखा जा सकता। Some of the northern constellations like Ursa Major may also not be visible from the some points of the southern hemisphere. Means उत्तर से दिखने वाले, उत्तरी गोलार्ध से दिखने वाले कुछ जैसे अर्सा मेजर लाइक कॉन्स्टिलेशंस हैं, वो साउथर्न मीन्स दक्षिण शोर से नहीं दिखाई देते। ओरियन इज एन अनदर वेल नोन कॉन्स्टिलेशन दैट कैन बी सीन ड्यूरिंग विंटर इन द लेट इवनिंग. इट इज वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई. इट आल्सो हैज 7 or 8 bright stars. Orion is also called the hunter. The 3 middle stars represent the belt of the hunter. The 4 bright stars appears to be arranged in the form of quadrilateral. The star Sirius, which is the brightest star in the sky, is located close to Orion. To locate Sirius, imagine a straight line passing through the 3 middle stars of Orion. Look along this line towards the east. This line will lead you to a very bright star. It is Sirius. Means आप इसमें देख सकते हैं किस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन उसकी बेल्ट से जाएगी, तो वो एक सीरीज नाम के स्टार, जो ब्राइटेस्ट स्टार इन आवर कह सकते हैं अपने स्काई में दिखाई देता है, दैट वन। तो इसको लोकेट हम कर सकते हैं इस प्रकार से। कैसियोपिया इज एन अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टिलेशन इन नॉर्थर्न स्काई. इट इज विजिबल ड्यूरिंग विंटर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट. इट लुक्स लाइक ए डिस्टोर्टेड लेटर W एंड M. फिगर 17.11 C हम देखेंगे इसको। दिस इज द ओरियन, और वी कैन से जिसको हम कह सकते हैं एन हंटर, 17.6 फिगर के अंदर दिखाया गया है। कैस्पियर जो है उसकी जो एक्चुअल पोजीशन रहती है स्टार्स की, इस प्रकार से बनता है वो। और स्टार्स, दीज आर द स्टार्स मीन्स ये पोजीशन स्टार्स की रहती है। 1 2 3 4 5 स्टार्स इन द कैसियोपिया। सो नेक्स्ट अब हम चलते हैं सौर मंडल पर, हमारे सोलर सिस्टम। फिगर 17.17 द सोलर सिस्टम
नॉट टू स्केल, स्केल के अकॉर्डिंग नहीं है ये जरूर स्केल के अकॉर्डिंग बनाया बट ये स्केल के अकॉर्डिंग नहीं है हमारा ब्रह्मांड। इसमें क्या होता है, इस प्रकार से कोई सन की पोजीशन को ऐसे मान लो, इसके चारों तरफ मीन्स एक स्फीयर के रूप में इसके अंदर इसके आसपास में सारे के सारे मीन्स कोई इस प्रकार से, तो दूसरा इस प्रकार से भी घूम सकता है, तीसरा इस प्रकार से भी घूम सकता है और इस प्रकार से भी घूम सकता है इसके चारों तरफ कोई भी किसी प्रकार का प्लैनेट। नाउ 17.4 द सोलर सिस्टम, सौर मंडल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। द सन एंड द सेरेस्टियल बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड इट फॉर्म्स द सोलर सिस्टम। मीन्स सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ कुछ हेवनलीज बॉडी राउंड करती हैं, रिवॉल्व करती हैं। दीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, और वी कैन से प्लैनेट्स के आगे जो इनके मून्स होते हैं, सैटेलाइट्स जिन्हें हम बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स, ये सभी चीज़ें क्या हैं, सन के चारों तरफ घूमती रहती हैं। दीज आर कॉल्ड, इन सब को मिला के बनता है सोलर सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज सच एज प्लैनेट, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड meteors. Yes, meteors also in this. The gravitational attraction between the sun and these objects keeps them revolving around it. Means gravitational force, attraction का जो force है sun का, वो इन सभी planets, comets, asteroids and meteors पे पड़ता है, जिसके कारण ये क्या है, इसके चारों तरफ घूमते हैं। जैसा कि आपको मैं एक एग्जांपल भी दे दूं कि एक लड़का एक स्टोन को एक थ्रेड से बांध के अपनी फिंगर के अराउंड रोटेट करता है, और वो जो एक स्टोन है वो उसके फिंगर मीन्स हैंड से बराबर दूरी पे उसके चारों तरफ घूमता रहता है। जो एक थ्रेड है, दैट वन इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स। वो एक अट्रैक्शन का हम कह सकते हैं इंडिकेशन है। द अर्थ एज यू नो आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन. It is a member of the solar system. It is a planet. There are 7 other planets that revolve around the sun. The 8 planets in their order of distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Figure 17.17 shows a स्केमेटिक व्यू ऑफ द सोलर सिस्टम, जो हम देख चुके हैं सोलर सिस्टम के एक डायग्राम को। आई हैव रीड दैट देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, लेकिन मैं पढ़ चुका हूँ कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स होते हैं। सो डिड यू नो टिल 2006 there were 9 planets in the solar system. Pluto was the farthest planet from the sun. In 2006 the International Astronomical Union IAU adopted a new definition of planet. Pluto does not fit this definition. It is no longer a planet of the solar system. Chapter 17 first part is completed now. Thanks for watching this. Please like, share and subscribe my Lionheart Keen Learner classes. Okay.